ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا کی حیثیت کو اور اس کی حقیقت کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. ہائے ساری دنیا کے انسانوں، یا مسلمانوں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس، ہائے ساری دنیا کے لوگوں، ہائے ساری دنیا کے انسانوں، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے. اللہ کے وعدے میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اللہ کے وعدے میں تمہیں کوئی کدورت، کوئی جھوٹ، کوئی فریب نظر نہیں آئے گا. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ بالکل برحق ہے، سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، آئے لوگوں ہوشیار رہنا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کی ذات کے سلسلے میں کوئی شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہوتا تو دکھائی نہیں دیتا. سب کچھ ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنے ستم ہو رہے ہیں ہمارے اوپر، آخر اللہ ہوتا تو مظلوم کی مدد نہیں کرتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دھوکہ دینے والی ذات یعنی شیطان کہیں اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال دے. غور کرو قرآن کی اس آیت پر. پہلے ساری دنیا کے انسانوں سے کہا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے. اس کے بعد آگاہ کر دیا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو جو تم دیکھ رہے ہو اور جس کے پیچھے تم پڑے ہو، جو بہت خوبصورت تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کے حسن و جمال تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کا زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ایک تو یہ ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر تم دھوکے میں آ جاؤ، اور پھر اگر دھوکے میں آ گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کی ذات کے سلسلے میں ہی کوئی تم کو دھوکے میں ڈال دے. شیطان تو ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے، وہی ہے جو اللہ کی ذات کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں ڈال سکتا ہے. تو دور سے جو چیز نظر آئے وہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. آپ بمبئی جاتے ہوں گے، گئے ہوں گے، دور سے بمبے کے سمندر پر نظر ڈالیے گا تو بمبئی کے سمندر کے ارد گرد جو ریت اور بالو پڑی ہوتی ہے، دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی پانی نظر آتی ہے. پانی، وہ بالو بھی آپ کو پانی، آپ دور سے دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمندر کا ایک حصہ نظر آئے گا. جب آپ قریب جائیں گے تب پتا چلتا ہے یہ تو بالو ہے، پانی نہیں ہے. جتنا آپ قریب جاتے جا رہے ہیں وہ بالو نظر آتی جا رہی ہے. تو میرے بھائیو، جس طریقے سے آپ کو دور سے جو چیز پانی دکھائی دے رہی ہے، قریب جانے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ میری نظریں دھوکا کھا گئیں، یہ پانی نہیں تھا، یہ تو بالو ہے، یہ تو ریت ہے. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی انسان کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دنیا کی چمک، دمک، رونق اور اس کا حسن و جمال انسان کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. جب اس کی حقیقت آپ تلاش کرو گے تو اس دنیا سے آپ نفرت کرنے لگو گے. یہ چیز ارے ایسی ہے، یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو محض کھیل اور تماشا کہا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے، لہو و لعب ہے. کھیل کیا ہے؟ ہم سے زیادہ تو آپ اچھی طریقے سے کھیل کے بارے میں جانتے ہیں. دیکھا 2020 کھیل، T20 بس دیکھا اور تھوڑی دیر چلا، فائنل ہوا اور ختم. آپ اپنے گھر اپنے گھر. جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے، تھوڑی دیر ہوا اور ختم، آپ اپنے گھر، کھیلنے والے اپنے گھر. جس طریقے سے اس کھیل کو دوام نہیں ہے، اسی طریقے سے دنیا کو بھی دوام نہیں ہے، دنیا کو بھی ہمیشگی نہیں ہے. اس دنیا میں آئے ہو تو جانا ہی پڑے گا. اس لیے فرمایا دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے. جس طریقے سے کوئی مداری آتا ہے اور اس نے اپنے بندر کو نچایا یا کوئی کھیل دکھایا اور تھوڑی دیر کے بعد کٹورا لے کر یا گمچھا لے کر آپ کے پاس آیا، 2-4-5 روپے کی بھیک آپ سے مانگی، تماشا دیکھا آپ نے. تماشا بین، تماشا دیکھنے والا اور تماشا دکھانے والا دونوں اپنے اپنے گھر گئے. جس طریقے سے اس تماشے کو کوئی دوام نہیں ہے، کھیل کو کوئی دوام نہیں ہے، اسی طریقے سے اس دنیا کو بھی دوام نہیں ہے. آپ آئے ہو تو جانا ہے،
मौलवी जर्जीस अगर 5 साल पहले बेनीपुर की सरजमीन पर आया था और आज बेनीपुर की सरजमीन पर आया है, तो मौलवी जर्जीस की ये जिंदगी ये बतला रही है कि मौलवी जर्जीस 5 साल अपनी जिंदगी कम कर चुका है और आप भी 5 साल अपनी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हो। आपकी दुनिया और आपकी जिंदगी आपको 5 साल पीठ दिखाकर आपको दिखाकर भाग चुकी है। आप उतना ही आखिरत के करीब हो चुके हो, आप उतना ही अपनी कब्र के करीब हो चुके हो। इस दुनिया को दवाम नहीं है, इस दुनिया को हमेशगी नहीं है, इस दुनिया को ये हमेशगी मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि खालिक के कायनात ने इस दुनिया को हमेशा के लिए बनाया ही नहीं है। हाँ, उसने इस दुनिया को बनाया है और हमें इस दुनिया के अंदर पैदा किया है, तो दुनिया से कुछ फायदा हासिल करने की तालीम भी दी, तरगीब भी दिलाई, उभारा भी, और ये भी फरमाया कि दुनिया को तर्क करके एक कोने में बैठकर कौम की रोटियों के टुकड़ों पे मत पलना, मोहल्ले वालों की रोटियों के टुकड़ों पर मत पलना। दुनिया में आए हो तो मेहनत भी करना, मजदूरी भी करना, ये हक है तुम्हारा। फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। जब जुमे की नमाज अदा कर ली जाए, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह तबारक व तआला ने। जब जुमे की नमाज पढ़ ली जाए, तुमने अपना कारोबार छोड़ा, अजान की आवाज आई उससे पहले ही तुम मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, सुनन पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दरूद शरीफ पढ़ा, इमाम के साथ खुतबा सुना और इमाम की इब्तिदा में नमाज अदा कर ली। अब नमाज पढ़ ली है, अब फजूल क्यों बैठे हुए हो मस्जिद में? जब नमाज अदा कर ली तो मस्जिद छोड़ो, नमाज पढ़ ली तो अब क्यों बैठे हो यहाँ? क्यों गप्पे लड़ा रहे हो? क्यों फजूल बातें कर रहे हो? क्यों बकवास में लगे हो? क्यों अपनी चौधराहट जमा रहे हो? चंद लोगों को इकट्ठा करके अब तुम दुनियावी मशागिल में मसरूफ हो गए हो। नहीं नहीं, अब ये दुनियावी बातों में मसरूफ मत होइए। कुरान कहता है जुमे का दिन बड़ी अहमियत का दिन है, बहुत मुबारक दिन है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन भी तुम्हारे लिए इबादत का मैंने मुतय्यन नहीं किया है। अब तुमने दीन तो हासिल कर लिया, अल्लाह का हक तो अदा कर दिया है, अब दुनिया को तलब भी करो, लेकिन उतना ही जितना मैंने बताया है। इस दुनिया को सर पर मत उठा लेना, इस दुनिया को अपनी छाती पर सवार मत कर लेना, इस दुनिया की मोह में इतना लालच मत कर लेना कि इस दुनिया के पीछे पड़ जाओ। जब नमाज अदा कर ली, फइज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज अदा हो गई, फंतशिरू फिल अर्द, तो हमारी बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। कानून भी उसी ने बनाया, दुनिया भी उसी ने बनाई, जमीन भी उसी ने बनाई, जमीन में अनाज भी उसी ने पैदा किया, उसने हमें और आपको भी इसी दुनिया में पैदा किया। वही उसूल बता रहा है कि आए मेरे बंदो, जब तुमने नमाज अदा कर ली, मेरी इबादत कर ली, अब दूसरे उसूल पर वो भी मैं ही बना रहा हूं, और वो उसूल यह है कि अब तुम मस्जिद छोड़ो, फंतशिरू फिल अर्ज़, अब तुम मेरी पैदा की हुई जमीन में फैल जाओ, मेरी पैदा की हुई जमीन में मुंतशिर हो जाओ। जहां तक हमारी जमीन फैली हुई है और जहां तक तुम जा सकते हो, तगोदो कर सकते हो, मेहनत और मजदूरी कर सकते हो, करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, मेरी जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क़ हलाल तलाश करो, रोजी रोटी तलाश करो, हाथ पैर मारो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए कमाओ, रिज़्क़ हलाल की तलाश में रहो। इसलिए कि अभी अभी तुम दुआ मांग कर आए हो, अभी अभी नमाज के बाद, नमाज के अंदर तुमने दुआ मांगी है। हाँ, दोनों सजदों के बीच में आपने रब्बिग़फिरली पढ़ा है, या आपने अल्लाहुम्मग़फिरली पढ़ा है, वरहमनी पढ़ा है, वहदिनी पढ़ा है, और आपने वआफ़िनी पढ़ा है। उसके बाद वरज़ुक़नी, रिज़्क़ की भी दुआ मांगी है, इबादत कर ली। अब रिज़्क़ हलाल की तलाश में तुम जमीन के ऊपर फैल जाओ, और हमने जो रिज़्क़ उतारा है, जो रोजी उतारी है, उसको तलाश करो, रोजी भी तलाश करो। वज़कुरुल्लाह कसीरा, और रोजी के साथ साथ अल्लाह को बहुत ज्यादा याद किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जब अल्लाह का जिक्र भी करोगे, रिज़्क़ हलाल भी तलाश करोगे, अल्लाह की इबादत भी करोगे, रोजी रोटी भी कमाओगे, मेहनत भी करोगे, और जरूरत के मुताबिक इस दुनिया को हासिल भी करोगे, तभी लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाबी तुम्हारी कदम बोसी करेगी, तुम्हें चूमेगी, तुम्हारे
कदमों पे गिरेगी। कामयाबी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, अल्लाह की इबादत भी, अल्लाह का जिक्र भी, और मेहनत और मजदूरी भी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां हम और आप नजर डालें कि किस तरीके से सीमा बांधा है अल्लाह तबारक व तआला ने। अभी तो कुरान की आयतें चल रही हैं, अभी थोड़ी देर के बाद अब हम अहदीस की तरफ भी आएंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। क्या नबी अकरम दुनिया से नफरत करते थे? नहीं, लेकिन दुनिया को सर पर भी नहीं बिठाया करते थे। आएंगी अभी मिसालें आपके सामने। क्या सहाबा किराम दुनिया से कतई ताल्लुक होकर किसी जंगल में चले गए थे अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर? नहीं, वो इबादत भी करते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, और अपने बीवी और बच्चों के लिए कमाया भी करते थे। वो दुनिया को हासिल भी किया करते थे, लेकिन दुनिया को वो सर पर नहीं बिठाया करते थे। इसीलिए फरमाया रिस्क भी तलाश करो, और यही वो भलाइयां हैं जो दुनिया के अंदर हमने पैदा की, हमने उतारी हैं। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह से तरके दुनिया की दुआ मत करो, बल्कि दुनिया की भलाइयों को तलब करने के लिए उसको पुकारते रहो। बल्कि अल्लाह ने ये दुआ भी सिखला दी, मेरे बंदो मेरी बताई हुई इस दुआ को पढ़ो और पढ़ते रहा करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आए हमारे रब, दुनिया में जो हसन, जो भलाइयां, जो खैर तूने उतारे वो हमें अता फरमा। वफिल आखिरति हसना, आखिरत के अंदर भी तो अच्छाई के साथ साथ बुराई है, अच्छाई जन्नत और बुराई जहन्नम। मेरे भाइयों, फरमाया कि तुम दुआ मांगो तो आखिरत के अंदर भलाई की दुआ मांगो, आखिरत में भी तो दुनिया ही में ये दुआ मांगो, अय अल्लाह दुनिया में अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं, खैर और भलाइयां भी हैं और आफात और मुसीबतें भी हैं। अय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर अच्छाइयां और भलाइयां अता फरमा। व फिल आखिरति हसना, आखिरत में भी भलाइयां और बुरी चीज यानी जहन्नम दोनों हैं, इसलिए आखिरत के अंदर भी हमें बुरी चीज से बचा, यानी हमें जन्नत अता फरमा, आखिरत में भी हमें भलाई अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें दोज़ख के अजाब से, हमें जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। यहां नजर डालें, पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की पूरी जिंदगी को कहा धोखा है, मताउल गुरूर, धोखे का सामान है। मैंने जो दूसरी आयत पढ़ी उसमें अल्लाह ने यह कहा कि तुम्हें दुनिया की जिंदगी कहीं धोखे में न डाल दे, फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, धोखे में न डाल दे। और ऐसा ना हो कि ये धोखा इतना बढ़ जाए कि तुम अल्लाह की जात के ताल्लुक से भी धोखे में आ जाओ और शैतान अल्लाह के बारे में भी तुम्हें धोखे में डाल दे। तीसरी आयत मैंने आपके सामने पढ़ी तो उसमें यह बताया गया कि दुनिया की जिंदगी महज खेल और तमाशा है, जैसे खेल और तमाशा बरकरार नहीं रहता है, दुनिया भी बरकरार नहीं रहेगी। चौथी आयत हमने आपके सामने पढ़ी, उसमें यह बताया गया है कि दुनिया के अंदर रहो, हासिल भी करो, दुनिया को तलब भी करो, लेकिन दुनिया में रिस्क भी हासिल करो तो इबादत भी करो। और ये दोनों चीजें, अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की इबादत और हुसूल दुनिया, दोनों को जब साथ में लेके चलोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये तभी मिलेगा जब जिक्र इलाही को, अल्लाह के जिक्र को और हुसूल दुनिया को, दोनों को साथ में लेके चलोगे। और हमने पांचवी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, दुनिया में अच्छाइयां भी हैं बुराइयां, लिहाजा दुनिया में अच्छाइयां तलब करते रहो और दुनिया में अच्छाइयों के पीछे पड़ो और उसी को हासिल करने की दुआ भी मांगो। लेकिन दुनिया को तलब तो करो, लेकिन दुनिया को महबूब मत बनाओ।